Assalamualaikum viewers. Welcome back to another episode of Beyond Textbook. This is your host and your host Aisha Ahmed. So as of today, the guest we have with us has been teaching since 2007 and is an experienced teacher in accounting and economics. He has been currently working in the City School North Boys campus, and apart from that, not only has been he enthusiastic about his teaching experience, he has also been a great part of music too. He loves singing, playing instruments, and also enjoys being performed in academic excellence too. So, but without any further ado, let's catch up on our guest today. Let's give us a warm welcome to Mr. Bilal Ahmed Khan. Assalamu alaikum. Walaikum sir. salam. Thank you for inviting me. I'm very obliged and happy to be here. Thank you so much, sir. So, without any further ado, I'll be asking you some questions. Right. So, I'll start from, sir. Why did you start your journey? What inspired you to start your journey in teaching? Well, it's a long story. Actually, I didn't want to be the teacher from the start. It started from the need, and then I got some inspiration from my friends and my cousins as well. Okay. I got into the teaching from teaching to the younger kids, and then by the passage of the time, I got to know that this is a thing that I can do better, and I can also make it as my field to earn money in this. So I got into the teaching field. That's Okay. why. Sir, so you have been working in quite a lot of institutes like the Academy, IUSS, and then the City School. So has been there some challenging things that you have faced because of the environmental change? Yes, of course. There are some changes for every institution. Every course. institution have different norms and regulations that you have to follow. But every institution did help me to grow and did give me enough chances. And I did hard work to build my knowledge and build my content, and that's why I'm here. And Alhamdulillah, I'm at a very better position right now. Of course, sir. Thank you. So I've heard that आप जो हैं apart from all the working things and teaching, you are good at music as well. Right. So you have worked in radios and apart from that newscasting too. Yes. So आपको किस चीज़ ने वहाँ पे मतलब शौक था, passion था आपका to go over there? Well, actually, this is a thing that I teach to my students as well. Yeah. That don't always go with single plan. I started my study journey. I started as a science student. Then I shifted to the commerce side later Yeah. on. So this is my experience that I experienced in my life, that you do not have to go with single plan. In case there is a failure in the first plan, you have to adopt to the other chances. So Yeah. that's why I was always enthusiastic about moving to the media field. Yeah. I also did some newscasting as well in my past experience. But then I got to know that I got to feel that this is not the right field for me, and then I shifted towards the teaching. Teaching side. Yes. Okay, that's great. Glad to hear. Acha sir, apart from that, I just want to ask you that you teach accounting and economics. So आप students को कैसे encourage करते हैं कि वो engage रहे इन subjects में, because they are a bit of a boring subjects. All right. So how Yes, do you ma'am. engage them? Well, different strategies. Actually, I've been doing some professional degree courses as well. Okay. Recently, I tried to keep myself updated as per the norms, जो कि आजकल की, क्योंकि बच्चे आजकल जिस तरह से आ रहे हैं, उनके पास उनका जो कंसंट्रेशन पॉइंट है बहुत लो हो चुका है, attention span बहुत कम. अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. तो उसके लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज प्लान करनी पड़ती हैं. गेमिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें वो खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. तो इस तरह से हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपना कर और बच्चों को इनकलकेट करते हैं ताकि वो खुद ही एक्टिवली वो लर्न करने का पार्टिसिपेट करें. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि किस तरह से, जिस तरह आपने बताया कि आप एंगेज रखते हैं, सो कॉमर्स की फील्ड से आपका ताल्लुक है, सो हाउ विल यू एक्सप्लेन स्टूडेंट्स ओ लेवल्स एंड कैम्ब्रिज वंस कि इज कॉमर्स साइड एक्चुअली गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी कि आप इनको ही पाथ एज अ पाथवे चूज करें, CA, ACCA, ICMA? Well, yes, of course. There is a very big opportunity for the commerce student, especially from O levels stream. Yeah. जिनको प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे CA करने का या ACCA करने का, या there are CIMA as well, Yeah. CFA as well. I encourage my students कि
although degrees are very important, intermediate करते हैं बच्चे, then graduation करते हैं, masters करते हैं. There's one friend of mine who used to be enrolled in the CA, and at the same time he was enrolled in the graduation as a commerce as well. So I take his example as well to the students that you have to take the degree as well, because it's the backbone skeleton. Most of the institutes require this degree as a requirement कि आपके पास डिग्री नहीं है but you have the professional courses. So डिग्री आप साथ साथ लेते रहे. It's not that much difficult for CA or ACCA students. It's like a child's play. But साथ साथ you must have special skills जो कि करंट वर्ल्ड सिनेरियो में रिक्वायर्ड है, जो बहुत ज़रूरी है आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी वर्थ को बढ़ाने के लिए. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा सर, विदाउट ऑल दिस हसल दैट यू आर डूइंग, टीचिंग एंड ऑल, आप पार्ट टाइम में क्या करते हैं? मतलब आप अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आपकी हॉबीज क्या हैं? योर पर्सनल लाइफ व्हेन यू आर फ्री, व्हाट डू यू लाइक टू डू? Well, I was very much into the cricket in my past, but अब तो टाइम नहीं मिल पाता. Teaching has been summed up in my career. बहुत ज़्यादा टाइम उसी में इनकलकेट हो जाता है. अब but I used to take out some time for my music as a hobby. I love to play guitar, do singing. Sometimes मैं कुछ रिकॉर्डिंग करके फ्रेंड्स के साथ कुछ इवेंट हो गया उसमें सिंगिंग कर ली. तो ये मेरा थोड़ा सा साथ साथ चलता रहता है, जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है कि एक ही काम कर करके इंसान थक जाता है. तो सर, म्यूजिक से ही रिलेटेड आई वुड लाइक टू आस्क कि ऐसे जैसे इम्प्रॉम्प्टू आप बता रहे हैं, तो ऐसा आपने कोई परफॉर्मेंस की है इन योर स्कूल और समथिंग लाइक दैट इन म्यूजिक ओनली? In fact, recently I performed for my university. I'm recently enrolled in B.Ed. I'm doing a professional degree, so that I will have more knowledge about how to teach and how to handle the diverse students and inclusive education किस तरह से हम inculcate करें. तो yes, I have been performing in many areas, many universities, many school events. तो मैं बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ मुझे इनवाइट किया जाता है और मेरे फ्रेंड्स जो कलीग्स मुझे इनवाइट करते हैं, आई ट्राई टू टेक आउट सम टाइम फॉर दैट. Okay. अच्छा सर, you have been teaching from a lot of time now. So students कभी कभी demotivate हो जाते हैं जब they have not got good grades या उनका कोई पेपर फ्लंक होता है. तो how do you keep them motivated? किस तरह से आप उनको बताते हैं कि consistent रहना चाहिए? What is your point of view to that? वेल ये प्रेशर जो है ना आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा है और मैं इसमें कसूरवार बच्चों को नहीं देता. आई ट्राई टू कंसल्ट और टॉक टू देयर पेरेंट्स. स्पेशली ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का होता है और आजकल के दौर में पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है. तो मैं पहले पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, इस तरह से हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं. अदरवाइज हर बच्चे का A1 ग्रेड आए. Although there is something that is in the hands of the children and in the hands of teacher as well, but these result does not reflect that who you are. आप जब पेपर देते हैं तो एक दिन देते हैं और एक दिन में आपके पास कुछ आवर्स होते हैं. वो आवर्स में आपने क्या किया है, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज विदिन यू, व्हाट इज विदिन यू. तो इसके लिए मैं उनको कोशिश करता हूँ कि वो इनकरेज हो, अपने जो भी रिजल्ट थोड़ा सा कम आया है, कम ग्रेड आया है, उससे डीमोटिवेट ना हो, बल्कि उनको बोलता हूँ कि ये आपने इस चीज़ में देखें इम्प्रूवमेंट की है, तो इससे आप कुछ गुड निकालें और नेक्स्ट के लिए मेहनत करें. बिल्कुल. अच्छा सर, आपको पता है कि आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतनी हो गई हैं कि आपने जैसे अर्लियर यू टोल्ड अबाउट लैक ऑफ अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. तो आप किस तरह स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हाउ टू स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल? अच्छा, डिस्ट्रैक्शन के लिए यस, वी हैव सो मेनी सोशल मीडिया एप्स. आप आजकल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है. तो ये बड़ा मुश्किल काम है आजकल के दौर में और ये सारे टीचर्स को मिलके ये काम इस पे वर्क करना है. ऑल्दो देयर आर समथिंग दैट कैन बी हेल्प विद दैट. जैसे कि कुछ कंटेंट हम ऐसा होते हैं जो यूट्यूब पे या जो शॉर्ट क्लिप्स के तौर पे बना देते हैं और वो बच्चों से फिर पहले से शेयर करते हैं, ताकि कुछ बच्चों में डेटा जो है ना क्विक टाइम में उनके पास ऐड हो जाए, उनके माइंड में आ जाए. तो इस तरह से भी वो जो है ना थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि हमारे पास ये डेटा जो है ना आराम से इजीली एक्सेसिबल है, अवेलेबल है by the use of internet and technology. Wow, that's great to hear. अच्छा sir, when you were a student in your early life, how did you used to tackle these things?
मतलब जब प्रेशर होता था तब उस जमाने में तो चलिए पीयर प्रेशर इतना नहीं होता था बट पेरेंट्स का ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी प्रेशर तो हाउ Yes. डिड यू यूज्ड टू टैकल वेल आई वाज ऑनेस्टली अ वेरी गुड स्टूडेंट एट माय स्कूल लेवल, बट उसके बाद जाके जाहिर सी बात है प्रेशर कम हो जाता है। जाहिर सी बात है जब हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में जो टीचर्स का जो तरीका होता है पढ़ाने का और जो फोकस होता है हम पे, वो हायर एक लेवल पे या हायर क्लासेस में जाके नहीं होता। बच्चों को ये रियलाइज़ होता है बाद में कि जब वो ए लेवल्स में जाते हैं या इंटरमीडिएट में जाते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चों नहीं के ऊपर नहीं होता। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जाके बच्चों की कंसंट्रेशन भी थोड़ी सी लो हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को कवर अप करके अपनी ग्रेड्स को बेहतर कर देते हैं। तो मैं भी यही करता था कि कोशिश करता कि अपने आप को चैलेंज करूं हर फील्ड में, जहां पर भी मैं जाऊं, कि मैं कोशिश करता था कि जो मैंने आज किया है कल मैं उससे कुछ ना कुछ बेहतर करूं। सर सो यू हैव बीन सो मच सक्सेसफुल इन योर फील्ड, जस्ट वांटेड टू आस्क कि आपकी लाइफ में से कौन से लोग रहे हैं हु यू वांट टू गिव क्रेडिट्स टू कि उनका काफी हाथ रहा है इन बिकमिंग ऑल दिस। वेल माय पेरेंट्स ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो भी मैंने काम किया, मैंने डिफरेंट फील्ड्स में जॉब की है, डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, तो उसको कभी भी मुझे डिस्करेज नहीं किया उन्होंने। दे इनकरेज मी कि जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं करूँ। तो मैं भी दूसरे बच्चों को या दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को यही मशवरा देता हूँ कि लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, क्योंकि उसी में वो अपनी भी खुशी देखेंगे और वो अर्न भी उसमें अच्छा कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो यही चीज़ मैं दूसरों को भी बोलता हूँ और मैं अपने लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। Thank you so much, sir, for all the great insights. Thank you so much, viewers, for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe, and don't wait for the next episode.